Hey guys, what's up? How are you doing? In this lesson, we'll talk about the important questions of science and technology and the paper one. And today was science and technology paper, so I got excited because of that. So, we have discussed question number 1 to 4 earlier, and here we will discuss 5 to 10 in this particular lesson. और I'll try to come live every time at around 1 a.m. because I get free from work at that time. प्लस थोड़ा उठ रहने की कोशिश करना एंड आई टॉक टू यू डेली. So today I saw the science and tech paper and I really liked the paper and it is quite good. And I personally feel that it can, like, if you study properly and then the people can score really really good marks in that. Anyway, we'll discuss all the, on popular demand, I'll discuss all the 80 questions, that is 20 into 4. Okay, so let's start with how does the Juno mission of NASA help to understand the origin and evolution of the Earth. So it's a very tricky question that you need to understand that what is Juno mission and what is the origin and evolution of the Earth. ये दोनों फैक्टर आपको पता होने चाहिए. तो पहले हम बात करते हैं जूनो मिशन की. तो उसमें बेसिक आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि नासा ने जूनो मिशन 2011 में लॉन्च किया था टू स्टडी दी जुपिटर्स एटमॉस्फेयर. तो जुपिटर्स एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, वेदर पैटर्न्स, ये सब स्टडी करने के लिए दे वर देयर. बट ये तो मेन एम था. बट स्टिल हाउएवर इट कैन ऑल्सो शेड लाइट ऑन द हिस्ट्री, फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ. एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखना होता है हमेशा. जैसे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ बोल रहे हो तो आप हिस्ट्री डाल दो उसकी, या पास्ट. एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखते हो दे इट मेक्स यू साउंड एज इफ यू आर इंटेलिजेंट दो यू मे नॉट बी. तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, बाय मैपिंग जुपिटर्स ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, Juno can help us in finding out if Jupiter had a central core or not. So it will establish how the planet was formed. ठीक है. So then same process of formation can be attributed to Earth because we are in the same solar system and we are very close astronomically speaking. वैसे तो बहुत दूर है, but astronomically it will just take you 2-3 years to go to Jupiter. Okay, if the spacecraft is really fast. In Mars you can go in 1 year. Okay. So second point is, like, if you know the composition of Jupiter, you can talk about early. Yes, Kapil, I do know about Namek planet. I am a Dragon Ball Z fan. But anyway, you distracted me by comments. So knowing Jupiter's composition can reveal us about solar system. पहले कैसे solar system था, क्योंकि जब solar system initially originate हुआ था तो it was a gas giant only. And gas giant is like totally about how the planet formation occurred. Because of their huge masses, it allowed the orbit of other objects like planet, asteroids, comets. कैसे बने थे, कैसे orbit हुआ था, because gas giants and all, इन सब से ही planetary system आपका evolve हुआ था. Initially there were no stars. एक nebula था. nebula मतलब होता है cloud. तो क्लाउड टाइप था स्पेस में, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम. देन दे इवेंचुअली कोएलिज्ड इन गैस जायंट्स. देन फाइनली सन, थोड़ा सा पास में जो प्लैनेट्स थे वो थोड़े से सॉलिड हो गए एंड ऑल दैट. वेजिटा टू. तो फिर आप पॉइंट लिख सकते हो कि जीनो विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट वाटर, अमोनिया जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कितना है. तो उससे पता चलेगा कि जो प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरी है वो सही है कि नहीं. एंड फाइनली जूनो कैन मैप जुपिटर्स इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टडी प्लैनेट्स ऑरोरा. नाम सुना होगा ना, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस. बोरियालिस का मतलब, जो बोर वर्ड है उसका मतलब होता है नॉर्थ. तो उसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारी सी लाइट्स होती हैं, नॉर्दर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स. सो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी. एनीवे, सो मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेरिक, इंटरनल कंपोजिशन, ये सब आपको पता चलेगा. सो दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर अर्थ बिकॉज अर्थ एंड जुपिटर आर बिलोंग टू द सेम सोलर सिस्टम. सो द प्रिंसिपल्स आर मोर और लेस सेम. So it will help us the evolution of understanding of Earth's magnetic system. इतना ही आंसर लिखना है, ज़्यादा लिखने का कोई पॉइंट नहीं है. तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे भावनाएं निकलती हैं आंसर्स में. सो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन स्पाइट ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोल माइनिंग इज स्टिल इनविटेबल फॉर डेवलपमेंट. डिस्कस. तो सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा, यस इट इज़ अ नेसेसरी ईविल. एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स कोल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना, which occupies more than 35% of world's population. मतलब more than 1/3% of the entire globe lives in India and China, and they are ridiculously dependent on coal. So yes, we 100% agree with the statement, at least for next 20-30 years. Why? I'll tell you. Coal is known as black gold,
and it forms a crucial fuel for the engine of development, especially in the poor and developing countries. Despite इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है पॉल्यूशन में, ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में. Now mining and burning of coal in power plant causes significant air pollution, water pollution, soil pollution. Emission of greenhouse gases also enhances global warming apart from CO2. So yet coal is considered inevitable. आप समझ रहे हो भावना कैसे, मतलब कैसे आपने ऐसे पहले डिज़ाइन किया कि नहीं यार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट देन यू से यार यस इट इज़ इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट बिकॉज नाउ कम्स बिकॉज कोल इज़ चीप. आप सोलर एनर्जी की बात करो बहुत महंगी पड़ती है, आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करो बहुत महंगी पड़ती है. कोल इज़ चीप, वाइडली अवेलेबल, इजीली माइंड सोर्स ऑफ एनर्जी कंपेयर टू अदर फॉसिल एंड नॉन फॉसिल सोर्सेज. लास्ट 250 सालों से चल रहा है नॉन स्टॉप. ठीक है, जब से स्टीम इंजन आया कोल इज़ माइंड लाइक एनीथिंग. Then developing countries, India and China, who have rich coal mines and huge power demand, more than 60% of their power needs are made through coal. More than 60%. So at least 20-30 साल तो कहीं नहीं जा रहा. Third point, electricity demand in India is expected to double in next 5 years. 2022 यानी कि 2022 तक it will double. Nuclear power generation is costly and then there are events like Fukushima disaster. तो उससे क्या होता है कि जो तमिलनाडु के लोग हैं, आपने पता होगा कुडनकुलन जो पावर प्लांट है वो कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा शायद. सो इकोलॉजिकली रिस्की है. नेसेंट स्टेज में इंडिया जैसी कंट्री में डिजास्टर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. अगर नहीं पता हो तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ लेना. जब वहाँ पे ऐसी चीज़ों पे ट्रेजेडी हो जाती है और गलती से न्यूक्लियर पावर प्लांट में ट्रेजेडी हो गई तो आप सोच नहीं सकते कि इंडिया में 10,000 20,000 लोग शहीद हो सकते हैं, उस केस में मर सकते हैं. सॉरी, शहीद वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मर सकते हैं. फिर उसके बाद अगर आप यूज़ करोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, फ्लडिंग है, तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सोलर पावर नीड्स के कारण. ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इशू होता है. फिर जो चौथा वर्ड है वो है कि कोल इज़ रिक्वायर्ड एज रॉ मटेरियल इन स्टील एंड हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है अदर इंडस्ट्री पे. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. अब ऑलरेडी जब आप बोल रहे हो कि मोदी जी जो है वो उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए, उसमें आप कोल इंडस्ट्री अगर बंद कर दोगे तो आप सोच नहीं रहे लाखों लोगों का जॉब चला जाएगा, स्पेशली इन पुअर बैकवर्ड एरियाज, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा. सो प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक द कोल इज indispensable for development in the near term, but due to its unsustainable and polluting nature we should gradually reduce it so that we should focus on other means like air energy, wind energy, solar energy, nuclear energy, etc etc. मेरे पीछे कौन है? कोई नहीं है मेरे पीछे, कोई भी नहीं है पीछे. 7th क्वेश्चन देखते हैं. Mention the advantages of the cultivation of pulses, because of which the year 2016 was declared as the International Year of Pulses by United Nations. So here the cultivation of pulses is basically, कैसे समझाऊँ? देखो, एक तो इकोनॉमिक एंगल है कि भाई महंगा बिकता है, दूसरा सोशल एंगल है, ठीक है, और तीसरा इकोलॉजिकली एडवांटेजियस है. फ़ैन क्यों चलाना है यार, आपको आवाज़ में दिक्कत होगी ना. तो सबसे पहले इकोनॉमिक एडवांटेजेस की बात करते हैं. पल्सेस विल गिव मोर प्राइस देन योर, मान लो बाजरा उगाओगे उससे बहुत ज़्यादा प्राइस मिलता है, आपने देखा ही होगा ना, दाल कितनी महंगी हो रखी है. सो इट्स कल्टिवेशन गिव फार्मर्स सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, स्पेशली इन इंडिया विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेज. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इज भारत देश है मेरा. दूसरा, एक्सपोर्ट ऑफ पल्सेज हेल्प्स इन गिविंग फार्मर्स बेटर प्राइस, ऑगमेंटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स एंड इन रिड्यूसिंग CAD ऑफ द कंट्री. CAD क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट. तीसरा पॉइंट देखते हैं. पल्सेज विल हेल्प इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह होता है, उससे काफ़ी कुछ होता है, तो क्रॉप रोटेशन में इसका काफ़ी यूज़ होता है. इट विल लीड टू मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. फार्म रेजिड्यूज ऑफ पल्सेज कैन बी यूज्ड एज एनिमल फॉडर विच विल हेल्प अस इन डेयरी सेक्टर. तो अगर आप मल्टी फार्मिंग कर रहे हो, यानी कि मतलब आप एक तो इंटरक्रॉपिंग होती है कि एक क्रॉप के दूसरा क्रॉप, उसके अलावा अगर मान लो मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हो, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि यूज़ एनिमल हस्बेंड्री और ये सब भी यूज़ कर रहे हो, सो इट इज़ रियली हेल्पफुल. फिर इकोलॉजिकल एडवांटेज क्या होती है कि पल्स कल्टीवेशन जैसे मैंने होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होती है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है, सॉइल यील्ड्स बढ़ती है, क्योंकि इसमें लैग हीमोग्लोबिन होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मोर सस्टेनेबल फूड सिस्टम बनता है. फिर पल्सेज हैव अ वेरी लो वाटर फुटप्रिंट कंपेयर टू अदर प्रोटीन सोर्सेज. अदर प्रोटीन सोर्सेज क्या होते हैं? अंडे, एग्स वगैरह. तो इससे क्या होगा कि सिंस पानी सबसे कम इसमें यूज़ हो रहा है, तो
यहाँ पे काफ़ी इजीली इसको इकोलॉजिकली फिक्स्ड है। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे पानी बहुत कम यूज़ होता है, तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे अदर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगी, पल्सेस ग्रो कर जाएंगी। तीसरा होता है पल्सेस क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इनकी क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़ होती हैं विच कैन बी सेलेक्टेड और ब्रेड। तो कल को अगर हमारा CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो यही बचाएंगे। सोशल एडवांटेजेस क्या हैं भाई, इंडिया में लगभग आधी पॉपुलेशन, मोटा मोटा बता रहा हूँ, इज़ प्योरली वेजिटेरियन, so they have to get protein, right? So pulses are a critical and inexpensive source of plant based protein and vitamins and minerals. They help in food and nutrition security of the country, especially the poor people. But अब तो गरीब लोग कहाँ से दाल अफोर्ड करेंगे, मतलब बट लिख देना मेंस में, अब क्या करें, कुछ तो लिखना पड़ेगा। In India, use of pulses in midday meal schemes is helping in malnutrition, जो प्रॉब्लम्स होती हैं चिल्ड्रन की, उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है पल्स का, आप पूछ रहे हो लाइव सेशन शेड्यूल, अब मान लो 1 महीने तक तो आई विल कम एट 1 AM, ओके। सो पल्स कल्टिवेशन विल हेल्प फार्मर्स इन देयर सस्टेनेंस एंड अपलिफ्टमेंट इन सोशो इकोनॉमिक लैडर। और तीसरा पॉइंट है रीजनल इम्बैलेंस रिड्यूस करेगा, जैसे पंजाब और हरियाणा काफ़ी ऊपर है, पल्स ग्रोइंग सेंट्रल इंडिया, उसके बीच में थोड़ा सा रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ डज द क्रायोस्फेयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। तो क्रायोस्फेयर होती क्या है, लोग सोच रहे होंगे यार स्ट्रेटोस्फेयर सुना था, ट्रोपोस्फेयर सुना था, बायोस्फेयर सुना था, मीजोस्फेयर सुना था, थर्मोस्फेयर सुना था, ये क्रायोस्फेयर कौन सी बीमारी है। तो सर एंड मैम, क्रायोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज स्नो, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, फ्रोजन ग्राउंड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रायोस्फेयर। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम आफ्टर द ओशियन। तो ओशियन तो सबको पता है, पूरी दुनिया को 70% ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय दैट। सेकेंड नंबर पे आता है क्रायोस्फेयर। जब भी वर्ड क्रायो आ जाए ना, क्रायो इज़ अ वर्ड विच मीन्स कोल्ड। सो जैसे क्रायोनिक्स, लिक्विड नाइट्रोजन को जब यूज़ करके आप किसी को प्रिजर्व करते हो तो उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 पे। तो क्रायो का यूजुअल मतलब होता है कोल्ड, जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। तो क्रायोस्फेयर का मतलब यहाँ पे हो गया ग्लेशियर, स्नो, आइस कैप्स, फ्रोजन ग्राउंड एक्सेट्रा, ठीक है। अरे क्रिप्टोग्राफी नहीं है यार, क्रायोस्फेयर है। एनीवे, तो पहला है क्रायोस्फेयर एक्ट्स लाइक अ हाईली रिफ्लेक्टिव ब्लैंकेट। अब आपको मैं एल्बिडो वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाऊँ, वो सब रहने दो, बस एल्बिडो वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है तो अर्थ की जो रिफ्लेक्शन होती है, जो सोलर रेज, वो ज़्यादा वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है 80-90%, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। स्नो एंड आइस है हाई एल्बिडो रिफ्लेक्टिविटी, तो इससे क्या होगा कि एक जनरलाइज्ड एनर्जी बैलेंस मेंटेन रहता है। तीसरा पॉइंट बताता हूँ, चेंजेस इन स्नो एंड आइस विल अफेक्ट योर एयर टेम्परेचर, इट विल अफेक्ट सी लेवल्स, इट विल अफेक्ट ओशन करंट्स, इट विल अफेक्ट स्टॉर्म पैटर्न्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आर्कटिक आइस मेल्ट हो रहा है तो उससे क्या होगा कि फ्रेश वाटर इनफ्लक्स कैन स्लो डाउन और डाइवर्ट द नॉर्थ अटलांटिक करंट्स विच अदर सी करंट्स विल गेट इम्पैक्टेड, टेम्परेचर विल गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, जोर से बोलूँ क्या यार, ठीक है जोर से बोलता हूँ। फिर चौथा पॉइंट है कि मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होती है, परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, जो कि 12 महीने फ्रोजन रहती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि इससे क्या होगा कि जो भी कार्बन जो ट्रैप्ड है सॉइल में, दैट विल कम आउट एंड इट विल अगेन रिलीज योर पावरफुल गैस, ग्रीन हाउस गैस, एंड इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। फिर जस्ट जैसे कि क्रायोस्फीयर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, चेंज इन क्लाइमेट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्रायोस्फीयर, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि हाउ डज क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। तो उल्टा भी आप लिख दो एक लाइन कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज विल रिड्यूस इन ग्रीनलैंड, रिडक्शन इन अंटार्कटिका आइस शीट, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद मेल्टिंग ऑफ माउंटेन होगा, एल्पाइन ग्लेशियर्स एंड सो ऑन। और पॉजिटिव फीडबैक से क्या होगा, एटमॉस्फेयर गर्म होगा, आइस मेल्ट होगा, अंडरलाइंग सरफेस जो होगी वो मोर हीट एब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि एल्बिडो कम होगा और ज़्यादा गर्मी होगी और ज़्यादा आइस मेल्ट होगी, और कम एल्बिडो होगा और ज़्यादा आइस मेल्ट होगी, और कम एल्बिडो होगा और ज़्यादा आइस मेल्ट होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि क्रायोस्फीयर ग्लोबल वार्मिंग पे इतना बड़ा थ्रेट है। सो ग्लोबल कम्युनिटी नीड्स टू वर्क टुगेदर, दे नीड टू कम टुगेदर फॉर कर्बिंग फॉसिल फ्यूल एमिशन, शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉन फॉसिल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्पेशली इन पोलर एरियाज, एंड क्रायोस्फीयर नीड टू बी ट्रीटेड एज ग्लोबल कॉमन, जैसे कि हम ट्रीट करते हैं अंक्लॉस का नाम सुना है, अंक्लॉस UNCLOS, जैसे कि हम उसको ट्रीट करते हैं, स्पेस को ट्रीट करते हैं वैसे। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कैन इट बी सेड दैट रीजन्स फॉर्म कल्चरल यूनिट्स रादर देन द स्टेट्स? गिव रीजन्स विद एग्जांपल्स फॉर योर व्यू पॉइंट्स। इंडिया वही चालू हो जाओ, रिच लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन, रेशियल ट्रेडिशन, रिलीजियस कास्ट डाइवर्सिटी भर भर के है। कल्चरल डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, कस्टम्स, लैंग्वेज, रिचुअल्स, आर्ट फॉर्म्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया।
It can be considered that regions rather than state form the cultural unit. For example, the four southern states have entirely different language family that is called as Dravidian: Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu. But their individual culture was not there about 2500 years ago. They were derived from a common culture called as Dravidian culture. Therefore, there are many similarities, like Carnatic music is one. It is same in the all the four states. थोड़ा मोड़ा change होगा. Dravidian architecture, worship of Shiva and Vishnu in temples are common here. So इसका मतलब है कि despite they being four states, despite having four languages, still they have something. Second point. Similarly, the northeastern region shows the dominance of tribal culture, prevalence of animism. Animism का मतलब क्या होता है? Please write it in the comments. Naturism in the hilly forested areas, forest dependent society, respecting nature, economy and socially cohesive units of people. Though there is a great deal of linguistic diversity and there are like more than there are 7 states in northeast. If you include Sikkim, there are 8. Then the third part is northern region can also be called as a cultural unit, because if you see similar cultural traits, Hindi is a common language. You go to UP, you go to MP, you go to Chhattisgarh, you go to Jharkhand, you go to Rajasthan, you go to Uttarakhand, you go to Himachal Pradesh, you go to any of these northern states, you will find that people understand Hindi, people speak Hindi. Agricultural based society होती है. Dressing sense is similar, sari, salwar kameez, gents का same. Food habits, social habits, music, dance form, Hindustani music, Bollywood music, natak, nautanki, they are similar things. Except some states, like there are exceptions to this, like Goa altogether evolved differently under Portuguese rule रहा है 400-500 years. So they have almost different cultural unit. Most states can be clubbed together in cultural regions rather than state wise. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. What are the two major legal initiative by the taken that? So the two legal major initiatives here include the Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act of 1989. सुना होगा. So this act basically थोड़ा सा ऐसे अगर लिख दोगे सीधे तो मज़ा नहीं आएगा. चलो थोड़ा भूमिका बनाते हैं इसकी. Scheduled tribes have been facing discrimination for centuries because of their different culture, different tradition, different lifestyle and racial feature. Britishers even called them criminal tribes करके कॉन्सेप्ट आया था. I don't want to go in detail, but just remember they have been discriminated against. उनका लैंड छीना गया, उनके साथ अत्याचार हुआ है. Indian Constitution strived to give them rights and protection under various articles. Under Article 15(4), Article 29, Schedule 5 and 6. Yet there are a lot of atrocities which are conducted against scheduled tribes. Their alienation from mainstream society continued for decades. Okay. After independence, highlighting the need for legal and other initiatives. So basically, I'll talk about the two things: Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act of 1989. So this act was brought in due to inadequacy of Prevention of Civil Rights Act of 1955 and Indian Penal Code. So it is in line with Article 17 of the Constitution. What is Article 17 of the Constitution? Right against untouchability or abolition of untouchability. So this act makes discrimination against SCs and STs a criminal offence. A lot of stringent punishments and provided for relief and compensation to the victims. Second point देखते हैं. Scheduled tribe and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Right Act of 2006. So it recognizes the ownership of tribes and other forest dwellers over land and other forest resources, especially the minor forest produce. छोटे मोटे जो कंदमूल फूल वहाँ से निकलते हैं. ठीक है. फिर they denied to them for decades to discriminatory colonial forest laws, जैसे Indian Forest Act of 1927 practices थे, उसमें allowed नहीं था. Apart from these laws, scheduled tribes की education promote करी गई है, health से food security promote की गई है, employment, development of infrastructure in tribal areas, all these are promoted. It will help them, again they are not at the same level playing field, it will help them in giving them a level playing field with the other sections of the society. So बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो एक कल निपटा देंगे उनको. So अभी थोड़ी लेट हो गया. Thank you, good night.